Students, in the previous video we have completed the chapter The Mauryan Dynasty. Today we are going to take up chapter number 3 from your geography section, that is locating places on the earth. So students, how do we find out places on earth? How do we locate them on map or in globe? We know that distance and direction help us to locate a place on a map or a globe. Students, suppose this is a map. If we know the distance and if we know the direction, then we can easily locate place on earth. If we are at a new place, we try to observe certain features of our surroundings. These features, such as a temple, a hill, or a river, help us in locating places. So students, how do we locate place generally? So if we are at a new place, हम क्या करते हैं, कोई लैंडमार्क देख लेते हैं, कोई टेम्पल है यहाँ पे, कोई हिल है, कोई रिवर है. सो विद द हेल्प ऑफ देम वी कैन लोकेट द प्लेस. दीज फीचर्स आर कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट और लैंडमार्क्स. अब जैसे सपोज आपको किसी से पूछना है SBI कहाँ पे है, दैट पर्सन भी से एक बहुत बड़ा ग्राउंड है चौगान, उस ग्राउंड के बिल्कुल सामने ही है, आपको डायरेक्शन वो बता देंगे. ओके वो बोलेंगे अपवर्ड स्लोप है वहाँ, वहाँ है SBI. सो these features, they are known as reference points और landmarks. इवन आप ऑनलाइन सामान भी ऑर्डर करते हो, आपसे लैंडमार्क पूछते हैं ना. जैसे जिन लोगों के घर रानीताल के पास है, दे यूज टू से कहाँ है भाई आपका घर, रानीताल के पास है. सो रानीताल गार्डन इज़ अ रेफरेंस पॉइंट और अ लैंडमार्क. ओके. The earth, being spherical in shape, has no edges or corners which can be used as reference points in locating the places. So the shape of our earth, that is spherical, and it does not have any edges or a corner. अब देखो, I have made a triangle here. Okay, suppose ऐसी shape है. So from this corner हम बता सकते हैं, from this corner यहाँ है ना हमारे पास कोई edge तो है, but this is spherical, we do not have any edge. अब अगर मैं यहाँ स्फीयर बनाऊँगी आपको समझ नहीं आएगा. ओके हम सोचेंगे कि यहाँ से यहाँ बता दें, बट 3D इमेज है. ग्लोब देखा है आपने, ग्लोब में एक कोना तो नहीं है कहीं. However, at the end points of the imaginary axis of the earth on which it rotates provides us two basic points to reference. But still, okay, we all know that earth rotates on its own axis. Suppose ये axis है, imaginary line है ये axis, ठीक है, और this is the shape of the earth. ये बड़ी गंदी सी शेप बन गई. सो क्या है, ये अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेट करती है. ओके तो हमने यहाँ पे इमेजिनरी पॉइंट्स बना लिए हैं, ठीक है. दीज पॉइंट एंड पॉइंट्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो यहाँ से आप देखो, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल. ओके. These are fixed points on the earth. The North Pole lies exactly below the pole star and opposite to it the South Pole, using the two poles as basic reference points. अब देखो ये जो दोनों poles हैं, North Pole and South Pole, they never changes. ठीक है, वहीं के वहीं हैं, ये सेम के सेम है. एंड इवन जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ स्टार जो पोल स्टार है उसके बिल्कुल नीचे है, और उसके बिल्कुल अपोजिट है साउथ पोल. Using the poles as basic reference points, an imaginary circle is drawn around the earth midway between the two poles. अब देखो, ये तो दोनों poles हो गए, and this is the imaginary circle. इन दोनों के बिल्कुल बीच में, ताकि हम अर्थ को डिवाइड कर सकें अपनी कन्वीनियंस के लिए, प्लेसेस को लोकेट करने के लिए. ओके. अदरवाइज़ आप एक बॉल का एग्जांपल ले लो, आपके पास स्माइल वाली वो स्माइली बॉल होती होगी, उस पर आपने कोई जगह लोकेट करनी है, आप कैसे करोगे, कैसे बताओगे कि यहाँ से कितनी दूर है, वहाँ से कितनी दूर है. ओके आप क्या करोगे, ऊपर नीचे 2 पॉइंट ले लो, इमेजिनरी पॉइंट्स, एक बन गया नॉर्थ पोल, एक बन गया साउथ पोल. उन दोनों के बीच में
बिल्कुल बीच में हमने एक इमेजिनरी लाइन बना दी, दैट इज़ नोन एज इक्वेटर। तो थोड़ा थोड़ा सा हम लोकेट करना इजी हो गया कि कहाँ है, नॉर्थ पोल के पास है, कहाँ है, इक्वेटर से इतनी दूर है। ओके, तो हो गए ना रेफरेंस पॉइंट्स। The half portion of the earth to the north of the equator is called the northern hemisphere. The southern half is known as the southern hemisphere. अब ये देखो, यहाँ this is the equator, यहाँ से नॉर्थ पोल की तरफ वाला सारा का सारा एरिया दैट इज़ नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर से नीचे की तरफ साउथ पोल की तरफ का सारा एरिया दैट इट विल बी नोन एज southern hemisphere. So earth is divided into two, northern hemisphere and southern hemisphere. यहाँ है नॉर्थ पोल, यहाँ है साउथ पोल। ठीक है, अब इतना पता चल गया। अब perpendicular line from any of the poles to the equator makes an angle of 90 degrees. Thus the north pole is at 90 degree and the south pole is at 90 degree south. अब यहाँ से देख लो, यहाँ से ये रहा इक्वेटर, यहाँ से सीधे ऊपर जाएंगे तो कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ से कितनी दूर हम बोलेंगे, 90 डिग्री, यहाँ से इस तरफ के लिए हम बोलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ से बोलेंगे 90 डिग्री साउथ, ताकि हमें पता चल जाए कि हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं और साउथ की बात कर रहे हैं। ओके, अब देखो लैटिट्यूड्स। अब एक दिस इज़ अ न्यू टर्म फॉर यू, लैटिट्यूड्स। ठीक है, आपने लैटिट्यूड्स को सिंपली एक चीज़ है उससे याद रखना है। वैसे तो दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइन, बट यू विल रिमेंबर लैटिट्यूड लेटी हुई लाइंस। ओके फाइन, लेटी हुई लाइंस लैटिट्यूड्स, दीज आर दी हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन ऑन अ ग्लोब और अ मैप और कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। हॉरिजॉन्टल, ये देखो कितनी सारी लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, पैरेलल टू इक्वेटर हैं सारी की सारी। ओके, दीज आर लैटिट्यूड्स। Since these lines can run parallel to each other, they are called parallels of latitudes. अब देखो ये जो लाइंस हैं एक दूसरे के सभी पैरेलल्स हैं, सो दे आर नोन एज पैरेलल्स टू लैटिट्यूड। देखो कट तो नहीं कर रही है एक दूसरे को कहीं, सीधी पैरेलल जा रही है। ओके, इट इज़ मेजर्ड एज एन एंगल subtended at the center of the earth. The latitudes are always expressed in degrees. अब देखो अगर हम इनकी बात करेंगे, हमने इस लैटिट्यूड का नाम बताना है तो इसका नाम डिग्रीज में होगा। ओके, वी हैव डिस्क्राइब्ड इट इन डिग्रीज। फाइन, अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके नाम कैसे होते हैं। ओके, देन दे आर नंबर्ड 0 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ और एंड साउथ। ओके, इक्वेटर इज लोकेटेड एट 0 डिग्री। अब यहाँ पे देखो इक्वेटर ये बन गया 0 डिग्री। ओके, यहाँ से हम ऊपर ऊपर जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे तो इसका नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा। बट हम अगर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ पोल की तरफ, वी विल राइट एन, और यहाँ पे 90 डिग्री पे पहुँच गए हम, 90 डिग्री नॉर्थ। अब देखो यहाँ से अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे, ठीक है, लैटिट्यूड, इसका नाम दूसरा होगा, इसका दूसरा होगा, पर इनका जो भी नाम होगा उसके आगे क्या लगेगा, एस, साउथ। यहाँ पे जब हम नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे पहुँच जाएंगे तब क्या बन जाएगा, 90 डिग्री साउथ। ओके, ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट एंड अ मिनट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स। Suppose the latitude of a place is 8 degree 4 minute and 25 seconds. We can express 8 degree 4 minute 25 seconds. देखो बेटा, ये टाइम नहीं है, रिवाइज द चैप्टर थॉरोली, बिकॉज इस सिंगल पेज में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं रिवाइज करने के लिए। आप ये देखो कि नॉर्थ पोल साउथ पोल आपको ग्लोब पे समझना है, यहाँ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड इट। यू विल राइट बाय योर ओन कि इक्वेटर इतने डिग्री है, यहाँ से यहाँ नॉर्थ में जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ साउथ में जा रहे हैं, अपने आप ट्राई करो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।